بٹ صاحب جدھر آپ کا دل کرے گا نا بات کریں گے، بے شک یہ براڑ لگا لیں، بے شک ملک صاحب کی، جدھر آپ کا دل کرے گا. تو سینٹر میں درمیان میں بات کروانے والے یوسف بھائی ہوں گے. اگر کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں آپ پہلے، علی جدھر بھائی آپ کا آپ دل کرتا ہے. علی بھائی آپ اپنی رکھیں تو ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں تو کل 7 بجے، کیونکہ دن میں تو کام کرنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے یہ یو کے کل ٹائم ہے نا؟ سات شام ٹھیک ہو گیا، شام ٹھیک ہو 7 گیا. بجے ہاں یو کے ٹائم پر. آپ جرمنی میں ہیں تو آپ کے 8 بجیں گے. تو میں ابھی میرے پاس کیا ٹائم ہوگا؟ میں یو ایس اے میں ہوں، تو اس وقت آپ کے پاس تقریباً 6 گھنٹے پیچھے کریں نا، تو آپ کے پاس تو اس وقت 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہے. ہمارے پاس تو تقریباً 1 بج رہا ہے نا، 1:15 کا ٹائم ہے. ہاں وہی نا 1 بجے کا تو تو کیونکہ 6 آورس مطلب بیک ہے. سیم ٹائم پہ رکھیں گے، رائٹ؟ ہاں اس کے مطلب یوسف بھائی ایک اور بات یہ واٹس ایپ میں نے کرنی ہے. واٹس ایپ اگر ٹائم دینا ہے نا تو کوشش کرنی ہے تو آپ نے آج ہی نا، کیونکہ آپ کے اکثر بندے ٹائم فکس کر کے نہیں آتے، 2-3 دفعہ ہوا ہے. کوئی نہیں آ جان گے. ہن تسی اینا مجبور نہ کرو بندے نو. نہیں آ جائیں گے انشاءاللہ. آ جائیں گے اور ڈاکٹر اسی صاحب کیڑی راکٹ 3 بار سائنس تے میرے گل ساتھ کر. ٹائم فکس ہوا نہیں آئے، 3 بار. عامر ابان صاحب مائک میوٹ کرنا ذرا پلیز. تھینک یو مچ. نہیں بالکل فرینڈلی بات ہوگی. بٹ صاحب کوئی اس طرح سے بات نہیں ہوگی کہ آپ میرے دشمن، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل جینوئن میں آپ کو حوالہ جات دکھاؤں گا. میرے ذہن میں ان کے بارے میں کچھ سوال ہیں، میں آپ سے سوال کروں گا تو آپ ان کا جواب دے دیں. آپ بھی اسی طرح ان کی زندگی سے مجھے کوئی اچھی باتیں دکھائیں، میں ان کو بھی دیکھوں گا. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں، میں نے آپ کے جو امام ہیں ان کی ہر کتاب کو پڑھ رکھا ہے. اور آپ کو حیرانی ہوگی، میں نے تاریخ احمدیت تقریباً ساری پڑھی ہوئی ہے. اور یہ بہت بڑی کتاب ہے. اس کے تو میرے خیال 20-22 یا 23 والیومز دوست محمد شاہد صاحب نے اپنی زندگی، ان کی زندگی میں ہی 20 والیوم تھے. اور بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے. تو بالکل سادہ سی باتیں ہوں گی. میں آپ کو آپ کی کتابوں سے بتاؤں گا، کیونکہ جب میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں وہ سوال پیدا ہوئے. آپ ان کا جو دل چاہے جواب دیں، ٹھیک ہے. اور آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو ضرور جی کہیں. جی سید صاحب دیکھیں، میں نے ایک آیت سامنے رکھی اور میں نے یہ بات سامنے رکھی کہ 50 سالہ زندگی میں اگر کوئی اعتراض ہوا ہے تو آپ میرے سامنے رکھیں تاکہ میں اس آیت کے مطابق دیکھ سکوں. نہیں دیکھیں بٹ صاحب، میرے آپ کے درمیان بات طے ہوگی. دیکھیں قرآن پاک ہر مسلمان کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے. ہم جو ہے نا چونکہ قرآن پاک پر اس لیے بات نہیں کرتے. اور اگر آپ قومی اسمبلی کی کارروائی بھی ایک دفعہ آپ نے پڑھی ہوگی، مجھے امید ہے، کیونکہ آپ نے اپنا نام ختم نبوت یونیورسٹی رکھا ہوا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے آپ نے نہ پڑھی ہو. وہاں پر جب طے ہوئی تھی باتیں، محضر نامہ جب پڑھا تھا مرزا ناصر جو آپ کے امام تھے اس وقت، انہوں نے ان کو ایک بات بڑی صاف بتا دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے سن لیا جو آپ نے کہا، قرآن اور حدیث سے بات شروع نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کے عقائد کے بارے میں جب ہم بات کریں گے اور آپ کی جماعت کے بارے میں بات کریں گے، اس میں جب آپ لوگوں نے قرآن اور حدیث پر بات کی ہوگی تو اس پر بات ہو جائے گی. تو اسی طرح جیسے آپ لوگ قرآن پاک کے بارے میں، مجھے بھی علم ہے، آپ کو بھی علم ہے، ہم آپ سے ایگری نہیں کرتے کہ آپ قرآن پاک کی کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے. اس پر گفتگو کا انداز بالکل ہی مختلف ہوتا ہے. اور لیکن یہ جو بات ہم کریں گے نا، کیونکہ ان کے بہت سارے، میں آپ کو کم از کم 4 ایسے ان کے کلیم دکھاؤں گا کہ مجھے نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں ملی ہے، اور میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پر جی ہم جب بات ہو جائے گی، اور اگر آپ نے مجھے کنونس کر دیا اور یقین رکھ، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں آپ کی تسلی کے لیے، یہ جو ہمارے سارے بھائی بیٹھے ہیں نا، انہوں نے آپ کی جماعت اور قادیانیت کے بارے میں اس لیے پڑھا کہ وہ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں. میں نے آپ کی کتابیں اس لیے پڑھی کہ میرے دل کو آپ کی سچائی کا یقین ہو جائے. آپ فرق کو سمجھیں، بہت شدید فرق ہے یہ. اور جب میں نے پڑھ لی تو مجھے پتہ لگ گیا، جو میں آج کہتا ہوں کہ بالکل غلط ہے یہ سب کچھ، تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا آپ کی جماعت کو کہ میں آپ کو جھوٹا ثابت کروں.
लेकिन जब मैंने पढ़ लिया तो मुझे पता है, मेरे दिल ने कहा ये सब झूठ है। मतलब वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आपका तो नहीं है। तो आप आए, तशरीफ लाएं, इस बात पर उनका ये क्लेम है, और मैं आपको सबसे पहले उनका ये क्लेम दिखाऊंगा, उसका हवाला दूंगा, और उससे बाद हम जब वो पैदा हुए उससे लेकर उनकी वफात तक, या जब तक कि आप कहेंगे जिंदगी पर हम बात करेंगे। और आपने, लेकिन बात होगी ना तो उस पर मैं भी आपको सबूत दिखाऊंगा, आपने भी सबूत दिखाना है। पर्सनल व्यू नहीं होगा दरमियान में, वो लोग खुद ही फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या व्यू बनाना है। आप भी मुझे हवाला दिखाएंगे और मैं भी आपको रेफरेंस से बात करूंगा। और दूसरे देखें, मैं आमतौर पर लोगों को कहता नहीं हूं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, ठीक है, और मैं दुनिया की जो सबसे बड़ी डिग्री है पीएचडी, उसका एग्जामिनर हूं। मैं लोगों के थीसिस पढ़ता हूं सारा साल और फिर उनका इंटरव्यू करता हूं। तो हमारा जो दुनिया का मुसल्लमा असूल है ना, अगर कोई मुझे कहता है कि रेफरेंस दो, तो हम 150 से 300 रेफरेंस मांगते हैं पीएचडी के थीसिस में, और हम कहते हैं कि जब आप इसको मेन टेक्स्ट में कोट करेंगे तो आप एक पूरी लाइन कोट करेंगे, पूरा फिक्रा होगा या 2 फिक्रे होंगे, इससे ज्यादा आप नहीं करेंगे। और ये यूनिवर्सिटीज जो है, मैं हार्वर्ड, लंदन और ऑक्सफोर्ड के आपको प्रिंसिपल बता रहा हूं, दुनिया की 3 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के। हम कहते हैं कि अगर आप पैराग्राफ कोट करेंगे तो आप पूरा पैराग्राफ नहीं कोट करेंगे थीसिस में, नहीं तो मुझे तो उम्र लगेगी पढ़ने में। आप पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट लाइन कोट करेंगे, एक फिक्रा दरमियान से, एक ऊपर से, एक नीचे से। तो ये दुनिया का मुसल्लमा असूल है। क्योंकि ये बात मैंने आपको इसलिए बता दी, आपकी जमात वालों ने एक अपना ही असूल बनाया हुआ है। वो कहते हैं जी 10 सफ़े पीछे और 10 सफ़े आगे। हम ऐसा नहीं समझते। हाँ, अगर हमें शक पड़े कि किसी कैंडिडेट ने एक ऐसा रेफरेंस दिया है कि जो हमें धोखा दे सके, क्योंकि टेक्स्ट का असल मतलब कुछ और है और उसने रॉन्गफुली इसको वहां पर लिखा है, हम सबसे पहले उस किताब में से कंफर्म करते हैं। आप भी कर सकेंगे अगर मैं गलत रेफरेंस दूं। दूसरा, हम उसे लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते। ये सबसे बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है। और मुझे पता है कि आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपका अलग ओपिनियन है रेफरेंस के बारे में तो आप बता दें। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको जानता हूँ, आप आका के गुलाम पे आप आते थे, बातें करते थे और मैं आपको सुनता था, इसलिए ये सारी बातें आपने मुझे बताई हैं, ये पहले ही मुझे आपके बारे में इल्म है। दूसरी बात, आपने कहा जी मैंने पूरी तारीख पढ़ी हुई है, बिल्कुल आपने पढ़ी होगी। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सबसे ज्यादा नूरानी चेहरा था। वो नूर हजरत अबू बकर सदीक को नजर आया और अबू जहल को सारी उम्र नजर नहीं आया। तो ये कोई दलील नहीं होती, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए जो भी मैं नतीजा निकालूंगा वो दुरुस्त ही होगा। मार्फत होना और चीज़ है। मैं भी आपको मिसाल देता हूँ। कल मेरी बात हो रही थी एक ब्रॉड पे हुसैनी साहब की, उन्होंने कहा जी कुरान में इश्क का मजमून ही नहीं है, कोई इस तरह की बात की। मैंने उन्हें कहा कि अगर इश्क नहीं होगा तो हमद नहीं हो सकती, अगर एहसान होगा, हुसन होगा तो हमद होगी, अगर हुसन भी नहीं, एहसान भी नहीं, तो मैं आपकी हमद क्यों करूंगा। तो कुरान में तो मजमून ही सारा इश्क से शुरू होता है पहले ही, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल बात यह कि मार्फत होना और चीज़ है, अल्फाज को पढ़ लेना, उसको थोड़ा बहुत समझ आना और चीज़ है। दूसरी बात, मैंने आपके सामने बहुत ही सादी बात रखी है कि ये मानी हुई हकीकत है कि जैसे मैंने सुकरात का भी हवाला दिया, उसने कहा कि तुम जानते हो मेरी जिंदगी को, तुम्हारे पास तो कोई सबूत नहीं है। मेरे पास मेरी जिंदगी सबूत है, जो मैं आपके दौरान गुजार चुका, आपके बच्चों को तालीम दी है, मेरी गुर्बत मेरी बेगुनाही का सबूत है। तो कुरान ने जो दलील दी है, बड़ी मजबूत दलील दी है, कोई झूठा मुद्दी नबूवत इस दलील पर पूरा नहीं उतर सकता। तो मैंने 50 साल आपके सामने रखे हैं, आपने सिर्फ मुझे बताना है कि देखिए 50 साल में से पहले उनकी उम्र में 40 साल की जब हुए या 30 साल की हुए, उनकी जिंदगी पर, उनकी पाकीज़गी पर ये एतराज़ात लगे, ठीक है, फिर मैं उनको देखूंगा। अगर 50 साल में आपके पास एतराज़ मौजूद नहीं है तो इस आयत के मुताबिक वो इस पैमाने के मुताबिक नबी ठहरते हैं मेरे नजदीक, ठीक है जी। तो ये कि बाद में मेरा मैंने ख्याल है आपसे कि कहा एक और बात, एक मिनट, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि आप खत्म नबूवत पर बात कर लें और मिर्जा साहब की जिंदगी के हवाले 3 एतराज़ात ले आए, जो आप समझते हैं, मोहम्मदी बेगम का ले आए, जो भी इल्हाम आप समझते हैं जी, पंजाबी में हुआ, इंग्लिश में हुआ,
जो तो मैं आपको उन एतराज़ात का जवाब देने का पाबंद हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि इनको हर तरह का निशान दे दिया जाए तो फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं सारी जिंदगी लोगों के एतराज़ात के पीछे इस सफ़े पे ये एतराज़ है, इस एतराज़ के पीछे इस सफ़े पे ये एतराज़ है, इस तो इसलिए मेरा तरीका ये है कि मैं खुलेआम दावत देता हूँ कि जिसको कोई इतराज है, तीन वो समझता है कि इसके जवाब देना नामुमकिन है, वो आप ले तो हम उन पे बात कर लेते हैं। तो मेरी बात खत्म हुई। दोबारा 50 साल का अरसा है आपके पास, उसमें अगर अच्छा, आपके आप पास मतलब उनकी जिंदगी के पहले 50 साल पर ही बात करेंगे, बाद के 18 साल पर नहीं बात करेंगे? देखिए, बात ये कि अल्लाह ताला कहता है कि उसके बाद तुम्हारी अकल का कसूर है, बंदा तो वही है 40 साल तुम्हें गुजार चुका है, तो मैं उस पे बात करूंगा जो पैमाने कुरान ने मुकर्रर किया है। बाद में भी बात कर लेंगे हम, लेकिन पहले वो आप बताएंगे उस पे है आपके पास नहीं नहीं, हम तो ले। बचपन से शुरू करेंगे, मैं तो पैदाइश से शुरू करूंगा आपको चलो बता। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है। मैं बड़े सीक्वेंस जी में ठीक बात हो गया। करूंगा। और एक बात और मुझे कहने दें कि देखें, आपकी बात जो है ना, आप ने जो मार्फत की बात की है, तो मुझे तो यकीन मतलब मैं क्या कहूँ कि मुझे जो हम वो जो दुनियावी क्राइटेरिया ना, उसी पर बात करेंगे कि दुनिया के लिहाज से जो एक आंख देखती है, जो यकीन नहीं रखती किसी पर, तो उसका क्या है मतलब। तो आप मुझे बता देना उनका जवाब। तो मार्फत को हम दरमियान से हटा देंगे, हदीस को, कुरान, सब चीज को हटाएंगे, सिर्फ सीरत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये सीरत के मुताबिक बात ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए था। तो बस इतनी, जो दुनियावी आंख देखती है और दिमाग समझता है, वो सीधी, मैं ना कोई मानी बनाऊंगा, ना कोई तावील पेश करूंगा, सादा सादा बातें, और मैं तावील पेश भी नहीं करता हूं। तो बस बड़ी फ्रेंडली सी गुफ्तगू होगी आपके साथ, आप यकीन करें। मैं आपको नीचा दिखाने की कतई कोशिश नहीं करूंगा किसी लिहाज से भी। अगर आपकी बात, आप मुझे तसल्ली बख्श जवाब देंगे तो मैं उसको बिल्कुल मान लूंगा, क्योंकि ये मेरी आदत में शामिल है कि कोई आर्गुमेंट जो आदमी ठीक देता है और लॉजिकल होता है, उसको मानना चाहिए। ठीक है? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। यूसुफ डॉक्टर भाई साहब बहुत 1 मिनट, शुक्रिया। मैंने व्हाट्सअप से बात करनी है। व्हाट्सअप माइक ओपन करें। व्हाट्सअप आपने कोई टाइम भी मुकर्रर करना है कि 2 घंटे या 3 घंटे, कोई इस टाइम का भी कोई हिसाब लगाना है, वो भी पहले बता दें। मुश्किल नहीं है, कोई पता होना कि टोटल हमारी बात कितनी देर होगी, हाँ 1 जी, घंटा, देखिए 2 घंटा, 3 घंटे। कल कल 8 बजे का टाइम रखा है, जर्मनी 8 बजे का है, तो जितने ये 50 साल से पहले पहले हवाले ले आएंगे कि 40 साल की उम्र में ये इतराज हुआ, या वो बचपन में उनके पे लेना चाहते हैं हवाले, अगर है तो उस पर बात हो जाएगी। अगर 3 नहीं हवाले नहीं, हुए, तीनों पे बात हो जाएगी। अगर 10 हुए तो टाइम लिमिट कोई नहीं मेरे पास, ठीक है, 8 बजे हाँ शुरू नहीं नहीं, आप करेंगे किसी जब। और दिन कर लेंगे। आप मतलब, हाँ जी, ठीक है, मैंने ठीक कोई आपसे लड़ाई थोड़ी करनी है बट साहब, मेरा तो कोई इरादा ही नहीं है ऐसा, आप इस बिल्कुल गलत समझे हैं। और मैं तो इसमें किसी रंजिश वाली डिस्कशन भी नहीं चाहता, बस फ्रेंडली सी बात है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा है तो आपने मुझे बता देना है कि ऐसा नहीं है। अगर आप समझते हैं तो आपने मुझे वो अच्छा, रेफरेंस दिखाना है, तो बस हाँ। हम मान अगर लेंगे। यहाँ पे मैं एक अगर बात और इस तरह वाज़ा करें, कर दूं। एक मिनट एक भट्ट मिनट, साहब, एक एक मिनट, मिनट, आप मैं एक भट्ट मिनट साहब एक बात मिनट। करना, मैं एक नहीं मिनट नहीं, बात मैं करना कुछ, मैं चाहता हूँ। इंतजामी वाले से कोई बात करना चाह रहा हूँ कि मैं कल कल का टाइम कह रहे हैं ना आप? जी जी। अच्छा, कल मेरे पास यहाँ पे दोपहर 1 बजे का टाइम होगा, आप लोगों के पास 7 या 8 बजे का टाइम होगा। तो मेरे ख्याल हम इस सेशन को ना 3 घंटे पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 घंटे में अगर बात खत्म हो जाएगी तो वाबे, या नहीं तो फिर अगला फिर नहीं, दोबारा दो टाइम लेते घंटे रखे ना, मतलब उनकी भी फैमिली है, मेरी भी है, मतलब हैं। 2 घंटे रख हम, लेते हैं, नो हाँ, प्रॉब्लम। तो मैक्स हम 2 घंटे तक बात करेंगे। 2 घंटे पे कर तो लेते हैं, उसके उसके बाद बाद अगर अगर रह गई तो बाद में कर लेंगे, अगले दिन या टाइम। वीकेंड पर कर लेंगे। जी जी तो ठीक है, अगर बिल्कुल टाइम सही है। पहले हो जाए तो वो बेहतर नहीं है, क्योंकि अमर भाई 8-9 बजे सो जाते हैं। हाँ, आमिर अमर भाई भाई। कभी कभी 10 बजे भी याद, आमिर भाई आएंगे तो सबसे अच्छी बात तो वो ये होगी, तो वो जरूर आए। बल्कि उनका आना, और राजा साहब तो आते ही हैं। राजा साहब तो मतलब, इंशाल्लाह होंगे। हाँ, तो एक मैं घंटा मौजूद होगा पहले कर जनाब, लेते हैं, मैं मौजूद हूँ। सात, जर्मनी के 7 o'clock पर कर लेते हैं, अगर ऐसी बात है। ठीक है, यहाँ मेरे पास 12 बजे का टाइम होगा। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। तो क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं पहले से, बहुत फिक्स होती हैं अपॉइंटमेंट्स, तो मैं कम से कम 4:30 पर फारिग होऊंगा, और उसके बाद हाँ
7 o'clock की बजाय 6 o'clock जर्मन टाइम हो जाएगा 7 o'clock। भट्ट साहब ठीक है? जी ठीक है, मैं एक बात ऐड कर दूं। मैं हमेशा ये बात मैंने रखी है लोगों के साथ मुकालमे में कि अगर उन्हें किसी चीज़ की तहकीक की ज़रूरत हो तो वो कह सकते हैं जी इस हवाले या इस सवाल का जवाब मैं सोच के दूसरे सेशन में दे दूंगा, चाहे वो अगले दिन, एक दिन बाद हो या एक हफ्ते बाद हो। तो यहाँ पे भी यही है डॉक्टर साहब, अगर मैं कोई हवाला पेश करूं या आप करें, क्योंकि मेरा दावा नहीं है कि मैंने हर लफ्ज़ को रटा हुआ है, समझा हुआ है नहीं मेरा ठीक है, साहब। मेरा भी ऐसा ठीक है, कुछ नहीं है हाँ तो। जी, हाँ जी, शुक्रिया। बस ये है कि क्योंकि इसमें ये है कि हार जीत का पहलू अगर होगा तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। नहीं ठीक है, भट्ट मैं साहब भी, हाँ हाँ जी, बड़ा मैं भी फ्रेंडली मुकालमा, हाँ जी, हाँ फ्रेंडली, जी, आप ठीक समझे, मैं ठीक है। आपको किसी जगह नीचा दिखाने की या आपकी कम करने की कोशिश नहीं करूंगा। आप यकीन रखें, अगर आपकी बात काबिल कबूल होगी मैं खुले दिल से मान लूँ। ठीक है जी, शुक्रिया। जबरदस्त। और एक आखिरी बात मैं कहता हूं कि अगर मेरी किसी रेफरेंस से आपको तकलीफ, बास रेफरेंस तकलीफ दे भी हो सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्शन एक ऐसा हो कि मुझे, मैं ऑफ कोर्स आपको रेफरेंस दूंगा, तो आप उसका बुरा ना महसूस करना, क्योंकि मैं बड़ा एक्यूटली इस बात को समझता हूं कि आपकी एक गैर मशरूत अकीदत है उनके साथ, ठीक है? और ये गैर मशरूत अकीदत बहुत सख्त अकीदत होती है। हाँ जी, देखें आप जो भी रेफरेंस देंगे, रेफरेंस देने में तो कोई बुराई नहीं है ना, वो जी, तो हमारी किताबों में जो है। तो मैं हर एक, मिर्जा साहब ने जो तहरीर किया है, हर एक दो एक रेफरेंस बाहर से भी होंगे, लेकिन वो तारीखी किस्म के होंगे, वो डायरेक्ट उन पर कमेंट नहीं होगा, वो आपको काबिल कबूल है ना। जैसे मैं तारीख का हवाला दूं कि देखें तारीख में ये वाकया हुआ है उनकी जिंदगी से रिलेटेड, तो आप हाँ उसको जी, तो मान लेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखें मैं उसको देख के फिर आपको जवाब दूंगा। हाँ तहकीक बिल्कुल। तलब हुआ, हाँ जी, तहकीक तलब, वो कह दूंगा तहकीक तलब है, पता होता। लेकिन कमो बेशतर मुझे अक्सर एतराज़ात का इल्म है, ठीक है ना, हाँ ये मैं बिल्कुल कह ठीक है। सकता, हाँ जी, ठीक है। मैंने आपको सुनना नहीं है पहले, तो मतलब आप मेरी तरफ से इत्मीनान रखें, ना मैं आपके किसी की इंसल्ट करूंगा, ना मैं आपसे ऐसी बात करूंगा जो मेरी ज़ाती ओपिनियन अपना होगी। डॉक्टर साहब, बाट साहब गाली वगैरह नहीं लगा निकालते, बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, इसीलिए नहीं कॉल पे नहीं लेते ठीक हैं हम। है, हाँ ठीक है, माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। देखें जो ईमान है वो और तो नासिर भट्ट वो हो रहे हैं, ये भट्ट हो रहा है। नहीं नहीं, ये मैंने इनसे कभी पहले मिलना नहीं हुआ, तो ज़रूर आए, ज़रूर बात करेंगे, फ्रेंडली सी बात है, हमारे सवाल हैं जैसे आपके सवाल हैं, तो आप जवाब दें। आप मुझसे पूछेंगे, मुझे आता होगा मैं ज़रूर दूंगा, नहीं आता होगा जैसे आपने कहा हम बता देंगे कि पूछ कर बता देते हैं। एक मैं गुजारिश ये करूंगा कि हम लोग लाइक जैसे राजा साहब होंगे या आप लोग मुनासिब समझे, मैं अगर यहाँ पे होऊंगा दौरान गुफ्तगू, अगर हमें ऐसा लगे कि ये बात जो काबिल एतराज़ है या ये इखलाकी तौर आप पे रोक दें ठीक नहीं उसको। है, तो उसको हम स्किप करने के, हमें आप दोनों इजाज़त देंगे ना, मतलब ऐसे कि हम बिल्कुल, इसको मेरी कहेंगे कि तरफ ये से बात। आपको पूरी इजाज़त है, क्यों नहीं। जी, भट्ट आप साहब आप भट्ट भी साहब से ऐसे ही। पूछें। हाँ जी, बिल्कुल, आपको पता है मैं तो करता ही नहीं, मैं तो सिर्फ जी ठीक है, बहुत ओके, हाँ जी, हाँ जी। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा, अभी हमारे पास दो अवान तशरीफ़ लाए हैं, तो पहले वो आमिर अवान साहब आए हैं, तो वो कोई बात अगर कहना चाहिए, इन्होंने गुफ्तगू तो सुनी होगी। जनाब अस्सलाम वालेकुम अवान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है यूसुफ भाई, ठीक ठाक हो? जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ, सो रहे हो कि जाग रहे हो? नहीं नहीं, मैं जाग ही रहा मेरी जान। मैं ते तेन पता कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी शाह साहब बैठे हुए हैं, उनकी तलीम, उनका जो बात करने का तरीका है, माशाल्लाह क्या खूब है, नॉलेज मिलता है उनसे। तो बात यह है कि आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर बात अच्छी लगेगी तो हम सुनेंगे, अगर कोई ना अच्छी लगी तो हम उसको वहां से रोक देंगे। ये बात अच्छी है आप लोगों की। एक मेहमान आता है उसको इज्जत देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला सबको इस ईमान में रखे, बस मैं तो यही आमीन कहूँगा। सुना। ठीक है ना बड़ी मेहरबानी। भाई? मुर्तज़ा अवान साहब मेरे बड़े हैं, शाह साहब बड़े हैं, यूसुफ भाई आप भी मुझसे शायद बड़े हो, भट्ट साहब बैठे हुए हैं ऊपर, अली भाई हैं। मैं तो समझ लो कि आप लोगों का गुलाम हूँ। ठीक है, आप लोगों से कुछ चलो शुक्र सीखता है, हूँ, बैठ के सीखता शायद हूँ। दा लफ्ज़ आपको पा के मैंने रिस्पेक्ट बड़ा है कीता है। आपकी। नहीं नहीं यूसुफ भाई, आपकी तो रिस्पेक्ट मेरे दिल में है, कसम से, सर जितने भी मेरे खत्म आमिर भाई नबूवत के बहुत शुक्रिया। मुजाहिद हैं।
जज़ाक आप सब भाई जी बिस्मिल्लाह। मुर्तज़ा अवान साहब और भट्ट साहब भी ऊपर बैठे हैं हमारे पास, बड़ी बड़ी बात है माशाल्लाह। 3 भट्ट हैं, एक सैयद साहब हैं। अच्छा अवान साहब सरकार, अस्सलाम वालेकुम। मुर्तज़ा अवान साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। यूसुफी भाई, सैयद क्या भाई, हाल बट है? सारे शुक्र लादा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ते अपना अजीम भट्ट साहब के हाल ने, खैरियत है, ठीक हो? ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ 10 ਵਜੇ ਯੂਰਪ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜੀ। जी जी ਸਵੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ जी जी 10 बजे है खत्म नबूवत अजराए नबूवत पर, और दोस्तों को मैं दावत दूंगा कि जो देख सके सुन सके लाजमी सुने देखे। तो ये किस ब्रॉड पे जी है? जी बिल्कुल। ये सीकर भाई की ब्रॉड पे है, यूके टाइम 9 बजे, और जाहिर है उधर 10 होंगे। यूरोप में जर्मनी होते हैं अपना अजीम भट्ट साहब, तो ये सीकर भाई की ब्रॉड पे जी। ये अभी समझे 2-2.5 घंटे रह गए हैं अभी। तो बहरहाल ये जो आप मौजू इजराए नबूवत ये जी ख़त्म नबूवत, अजराए नबूवत, और उसके बाद फिर अभी जिस तरह ये अजीम भट्ट साहब को मैंने सुना तो बता रहे थे कि मोहम्मदी बेगम साहबा का भी इसमें ज़िक्र आया, तो फिर बाद में कभी वो फिर कर लेंगे, या सलीब वाला जिस तरह भट्ट साहब बात हुई थी, जो भी हुआ। चलें वो फिर किसी और मौके पे अगर कोई ऐसा सेशन हुआ तो इंशाल्लाह कर लेंगे। तो भट्ट साहब ऊपर बैठे हैं, भट्ट शहजादा। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। हाँ जी भट्ट साहब सर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जी शुक्र अल्लाह। शाह साहब बैठे हैं, तमाम दोस्तों को सबको सलाम। आपको भी जो भट्ट साहब हैं जी, अहमदी हजरात, आपको भी सलाम है जी। जी भट्ट साहब तो डबल सलाम होना। तो मैंने बहुत खूबसूरती से बात सुनी, जहाँ शाह साहब हों फिर मैं वहाँ पे ना बैठूँ, ये तो हो नहीं सकता। तो बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे, और हम इसी तरह जिस तरह आज हमने अहद किया है, इसी तरह हम तहम्मुल मिजाजी से गुफ्तगू सुने और करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें हिम्मत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। शाह साहब को भी, इन दोस्तों को जो मेहमान आए हैं इनको भी। देखें बात यह है कि बाहसीयत एक इंसान, हमें अल्लाह ताला ने जो खलक किया है उसका तो एक ही तरीका है ना, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है ना। तो बाकी इख्तलाफात हैं वो अगर प्यार से होने चाहिए, ठीक है। किसी का दिल मानता है वो माने, नहीं मानता तो कोई मसला नहीं है। शाह साहब अपने दलाइल रखेंगे वो अपने रखें, हमें खुशी होगी कि हम इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे। ऊपर जगह मिल गई ठीक है, नीचे बैठ के भी सुनेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। मेहरबानी। भट्ट साहब कता कलामी माफ़, आप जमात अहमदिया से अपना शहजादा भट्ट भाई। जी जी। तो मेरा अगर सवाल ऐड कर ले, मैं असल में वो बिज़ी ज़रा होने लगा था, मैंने कहा सवाल मैं रख देता हूँ। तो जिस तरह अभी ये ख़त्म नबूवत यूनिवर्सिटी साहब ये जो बड़ी स्क्रीन पे हैं साहब, ज़ाहिर है ये जमात अहमदिया से उनकी बात होगी सैयद भाई से, तो आपका क्या ख्याल है जमात में रहने का तजुर्बा, या आपकी अभी भी रिश्तेदारी या सारा कुछ, कि कितने फ़ीसद, कहीं से आवाज़ आ रही है जी किसी बात से, कितने फ़ीसद जो अहमदी हैं, जिस तरह अभी भट्ट साहब ने भी कहा, ये अपना अजीम भट्ट साहब ने, कि जी जो हवाला मुझे मालूम होगा, अक्सर हवालों को तो मैं जानता हूँ, जो हवाला मुझे मालूम होगा वो मैं अर्ज़ कर दूंगा, जो नहीं होगा वो फिर ले आऊँगा। ये उस बंदे की बात है जो कि डिबेट करने की बात कर रहे हैं और वो जानते भी हैं। तो जो एक आम अहमदी है उसने कितनी किताबें मिर्ज़ा साहब की पढ़ी हुई हैं जी, वो अपने अकायद को कितना ही जानते हैं, ये कुछ बताइएगा आप भट्ट से ज़्यादा भाई। जी मोहतरम, जेड़ा ते मेरे को नॉलेज है ना, मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी मतलब अहमदियत दे विच ही गुजारी है, और जेड़े मेरे हल्का अहबाब हैं, मसलन मेरे अपने भैन भरा, मेरे रिश्तेदार, उन्हां दे विचों मेरा ख्याल है मैं 1% भी मेरा ख्याल है शायद होवे कि जेड़ा किताबां पढ़दा होवे, इन्हां दियां हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जेड़ा कहंदे ने इन्हां दियां किताबां पढ़न दा जेड़ा ना मतलब कोई ख़ास इत्तफाक नहीं होंदा। ते बस ये जेह्ड़े मतलब इन्हां दे मुरब्बियान वगैरह होंदे ने, पढ़दे ने, उन्हां दा ते इल्म होंदा है। ते आम असी जेह्ड़े इंसान आ, साडी जेह्ड़ी है ना बस बेसिकली ज़्यादातर जेह्ड़ा ना
बस सानू वालदैन को यही तरबियत मिलती सी कि भाई सवाल नहीं करना। बस मैं तो 8 साल का था तो मेरे घर के सामने मस्जिद थी अहले सुन्नत वल जमात की, तो मैं वहाँ जाता था। तो मेरी वालदा अल्लाह जन्नत में घर देने, वो कहती थी कि बेटे इन मस्जिद में नहीं जाना। तो मैं कहता था अम्मी जान मस्जिदें तो अल्लाह की हैं। तो ये क्या बात हुई? तो फिर कहती थी नहीं बेटे आप बड़े हो गए तो आपका पता चलेगा आपको। वो एक ऐसा सवाल था मेरे ज़हन में बैठता बैठता, बस उसी को पलता पलता फिर मैं आगे तहकीक करता करता इस नतीजे पर पहुंचा। जैसे ये अपना शाह साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि मैंने इन किताबों के हवाले मैंने इसलिए नहीं पढ़े, मैंने इनका लिटरेचर इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं झूठा साबित करूं। मेरा भी अल्लाह गवाह है, मैंने भी जो तहकीक की है ना इस नीयत पे की थी। और मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि मेरा सारा ख़ानदान अहमदी है। अगर आज भी मुझे कोई अहमदियत सच्चा साबित कर दे तो मैं फिर इंशाल्लाह ताला वापस लौटने को तैयार हूँ। तो बस यही है, और कोई सवाल? हाँ, ये सवाल वैसे मुझसे भी कर लेते तो मैं भी जवाब दे देता। मेरा ख्याल है कि कल अगर एक मिनट, आपको मैंने सुना है बट साहब बुरा ना महसूस कीजिए, मैंने आपको सुना है कंप्लीट, मेरा हाल 1 घंटा सुना है। आप में एक नक्स है, अगर आप बुरा महसूस ना करें, मैं मुंह पे बात करता हूँ, पीठ पीछे नहीं बात करता। आपको जो सवाल किया जाता है ना उसका जवाब नहीं देते आप, मौजू से हट जाते हैं। और मेरी ये गंदी फितरत है कि मैं एक मौजू से हटता ही नहीं हूँ। जब तक उस सवाल का जवाब ना मिले मैं आगे नहीं जाता। तो आपको सवाल, यानी मैंने आपको कल सुना है, ठीक है ना, तो ये आपके अंदर नक्स है, और नक्स निकालना को बुराई नहीं होती मुंह के ऊपर। हाँ, अगर मैं आपकी गैर मौजूदगी में कहूँ तो वो गुनाह है। मैं आपके मुंह पे कहता हूँ कि आप में ये नक्स है मेरे भाई कि आप एक जो सवाल किया जाता है ना उसका जवाब नहीं देते, आगे से कोई दूसरी तावील निकाल लेते हैं। असूल ये होता है कि जो सवाल किया जाए उसका जवाब दें, हाँ या ना। हाँ अगर है तो दें, नहीं है तो बोलें जी मैं कल ला दूंगा, परसों ला दूंगा, चौथ ला दूंगा। तो मुझे तो ये बहुत बड़ा नक्स लगा है आपके अंदर कुरान करीम के हवाले से। अब कल किताबों के हवाले से होगा, किताबों का तो मुझे अल्फ बे का नहीं पता, वो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे, देखते हैं कि किताबों के मामले में आप क्या साबित होते हैं। क्योंकि मैंने आपका कोई किताबों के मामले में कोई डिबेट नहीं सुनी। वो कल इंशाल्लाह मुझे बड़ा इश्तियाक होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। कल अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, मैं भी आऊँगा, सुनेंगे आपका मौक़िफ़। किताबों के बारे में मुझे इल्म नहीं, शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि मैंने इनका सारा लिटरेचर पढ़ा है, बेहतरीन बात है जी। हाँ जी, बात ये है कि आपने अब बिल्कुल उल्ट बात कर दी उससे जो आपके दूसरे भाई साहब, मेरे भी भाई लोग करते हैं कि भट्ट साहब मौजू पे रहते हैं, मौजू से हटते नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने कभी देख ले कभी दूसरों की तहरीरों की तरफ भी नहीं गया कि तहरीरुन नास में क्या है। नहीं, मौजू से हटने से बात, सॉरी हाँ, मौजू नहीं, से अब हटने मेरी से बात बात ये नहीं। मुकम्मल होने देना। सुन ले प्लीज, मैं आप मेरी बात अपनी मैं बात, सुन ली है ना, मेरी बात मुकम्मल होने दे, मेरी बात मैं मुकम्मल होने आप हाँ। मेरी बात समझे नहीं ना, बात दूसरी तरफ लेके मैं जा रहे हैं ना। समझ मैंने गया अर्ज हूँ। की है, मैंने अर्ज की है, सुने मेरी बात, फिर सुन ले प्लीज। मौजू से नहीं हटते आप, मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी अर्ज ये है कि जो सवाल आपसे किया जाए ना उस सवाल का जवाब नहीं देते, हाँ जी, सवाल को देखो चेंज कर देते हैं। वो ये है, यहाँ चलें, तो आप कैरियर हाँ करें। हाँ जी, देखो या तो आप एक मुअय्यन बात बताएं। देखें जी, आपका ये सवाल हुआ था, आपने जवाब नहीं दिया, आप दूसरी तरफ चले गए, तो मैं अभी आपको दे देता हूँ, बता देता हूँ कि ये मेरा तरीका ही नहीं है। एक मिनट, ये तरीका ही नहीं है मेरा। हो सकता है कि आपको समझ ना आई हो, तो अगर आपको भाई समझ नहीं आई तो मुझसे अभी पूछ लो कि देखें जी आपसे ये सवाल हुआ था, आपने जवाब नहीं दिया या मैंने मिस कर दिया, मुझे दे दो, मैं आपको दे देता हूँ। मेरा तो तरीका यही है कि जो सवाल होता है उसका जवाब देता हूँ तो किसी और तरफ जाता हूँ। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। ये अभी भाई आए थे, कहते जी मैंने आपसे कहा था कि आप खातमुन नबीयीन का क्या तर्जमा करते हैं, मोहर करते हैं, आखिरी करते हैं, सबसे आला करते हैं। मैंने उन्हें एक जवाब दिया था, उनको मेरा समझ ही नहीं, क्योंकि आज भी वो ही बात दोहरा रहे थे। मैंने जवाब दिया था कि खातमुन नबीयीन वाली आयत में लफ्ज लाकिन हमें जिन जिन चीज मतलब की इजाजत देता है वो सारे मतलब हम लेते हैं। इतना मतलब कि एक मुअय्यन जवाब और जामे जवाब की इससे बेहतर जवाब हो नहीं सकता कि वो आयत का मतन हमें जिस चीज तर्जमे की इजाजत देता है वो हम लेते हैं। अब उनको समझ नहीं आई। आज वो आके कह रहे थे जी मैंने तो कहा था 3 का, मैं बता रहा हूँ, मुझे बताएं कि आप कौन सा तर्जमा लेते हो। भट्ट साहब जवाब नहीं दे पाए। अब मैं उसका क्या जवाब दूं, बताएं पहले।
तो इस तरह हो सकता है आपको समझ ना आई हो, लेकिन ये आप ना कि अच्छा जी आप जवाब नहीं देते तो उधर चले जाते, ऐसे नहीं होता जी। चले बहरहाल, कल मेरे से बड़े बैठे हुए हैं शाह साहब बहुत, और भी मेरे से बड़े हैं, मैं तो इनके इल्म के लिहाज से मैं एक रत्ती बराबर भी नहीं हूँ। कल इंशाल्लाह बात होगी, हम सुनेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपका पता चल जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब तो ये बहस फजूल है ना, मैं आपको कह रहा हूँ, और मैं ना मानूंगा ना आप मानेंगे, तो कल इंशाल्लाह खुद पता चल जाएगा, अमली ज़िंदगी में जा पाएंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, दूसरी बात, हाँ जी, नहीं दूसरी बात आपने कहा कि हमारे कहा जाता है, दुरुस्त की कर दे अगर मैं गलत हूँ, आपने अभी कहा कि सवाल नहीं करना, आपकी वालदा ने आपको ये तालीम दी, दुरुस्त है? आपने ऐसे ही कहा या क्या मतलब था आपका? नहीं, ये हाँ बात जी, नहीं मैंने कहा। मैंने उनसे कहा कि भाई अम्मी जान, ये जो मस्जिद है सुन्नियों की, जो आप सुन्नियों को कह रहे हैं, ये भी अल्लाह की मस्जिद है, और जहाँ आप मुझे लेके जाती हैं वो भी अल्लाह की मस्जिद है। यहाँ आप क्यों मना करती हैं मुझे? मैं छोटा था, बच्चा था ना, तो फिर उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे आज भी याद है कि बेटे अभी तुम छोटे हो, अभी तुम ऐसे सवाल ना करो, जो बड़े होगे आपको पता चल जाएगा फ़र्क। ये हाँ मैंने जी, कहा। हाँ जी, देखा ना, ये कितनी अब वाज़ेह बात आपने की है, मुझे भी वजाहत मिल गई। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितनी तालीम का के लिए हमारी जमात काम करती है, और ताकि लोग किताबें भी पढ़ें, हमारे दरस भी होते हैं, हर ज़ोहर की नमाज के बाद जो है मिर्ज़ा साहब की किसी किताब का दर्स शुरू हो जाता है, वो आखिर तक चलती है। इसी तरह फजर की नमाज में कुरान का दर्स शुरू होता है, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले MTA हमारा आया था सैटेलाइट के जरिए खुतबात को पहुंचाने का इंतजाम। सबसे पहले सारी मिर्ज़ा साहब की कुतब इंटरनेट पे हमने अपलोड की ताकि हर एक को दस्तयाब हो जाए। अब बात यह है कि आप किसी को जबरदस्ती नहीं फोर्स कर सकते कि तुम किताबें पढ़ो। हाँ, आप फर्ज करें, मैं अपने घर में अपने बच्चों को कहता हूँ, उन्हें टारगेट देता हूँ कि आपने बेटा ये छुट्टियां आपने इतनी किताब खत्म करनी है, तो सारे हमारे घरों में जिनको मैं जानता हूँ कम से कम यही तरीका है। हाँ, बात की तालीम नहीं होती या तालीम का शौक नहीं होता, तो वो तो मिर्जा साहब की किताब क्या, वो कुरान भी गौर से नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते हैं तो बस एक दो दफा पढ़ लिया, नाजरा पढ़ लिया, तर्जमे की तरफ ध्यान ना दिया। तो ये सिर्फ मिर्जा साहब की किताबों के साथ नहीं है, ये कुरान के साथ भी यही मामला है, और ये दूसरों की तरफ ज्यादा मामला है कि उन्हें कुरान का नहीं पता। मिर्जा साहब की किताब तो बड़ी बाद में आती है, कुरान के बाद आती है। हाँ जी, मैंने बट साहब इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ उन्होंने सवाल किया मुहतरम ने, तो मैंने ये जवाब दिया अपनी सोच, अपनी जो उस वक़्त, अब तो खैर बहुत अरसा हो गया ना इस बात को, 30-35 साल हो गए हैं, आज तो ये जदीद दौर है ना, आज की बात नहीं हो रही, ये बहुत पुरानी बात है। उस वक़्त मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त ये रुझान नहीं था। मैंने ये कहा था कि मना करते थे, तलकीन तो की जाती थी, वालिदैन वालिद साहब भी कहते थे, लेकिन ना मैंने अपने वालिद को देखे, मैं तो उनकी गवाही दूंगा जिनको आंखों से देखूंगा, ना मैंने अपने वालिद को देखा किताबें पढ़ते, ना वालदा को, ना ही अपने बड़े भाई को, ना ही बड़ी बहनों को। मेरे तो वही है ना बड़े जो मेरे सामने हैं, मैंने नहीं देखा। तो ये है बस, बाकी ये कि मैं नहीं कह रहा कि वो मना करते हैं ये वो, क्योंकि रुझान नहीं है वो। आपकी बात सही है कि हम कुरान भी जैसे नहीं पढ़ते, ज़्यादा सुस्ती करते हैं, तो वो कोताही के नतीजे हैं। मैं तो ये कोताही समझता हूँ, मेरी ये कोताही थी। जब मैं अहमदी था तो मुझे मेरा फ़र्ज़ था कि मैं किताबें पढ़ता, तो मैंने नहीं पढ़ी, ये गलती है मेरी। अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं बताता हूँ कि मेरे घर में कोई दीनी तालीम नहीं हुई, मैं एक दिन भी मदरसे में नहीं गया। पाकिस्तान की तालीम भी मेरी मामूली तालीम है, लेकिन मैंने अपने शौक से मिर्जा साहब की कुतब पढ़ी, कुरान का तर्जमा पढ़ा, तफासीर पढ़ी। हालांकि उर्दू की मेरी तालीम बहुत सारे मामूली तालीम है, ठीक है। तो लेकिन मुझे घर से नहीं कहा गया कि आपने ये, जैसे मैं अपने बच्चों को टारगेट देता हूँ कि मेरे वालिद ने मुझे तो ये हर एक अपना ज़ाती फेल है। बाद लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी होती है, वो गहराई में जाते हैं, बाद लोग ऊपर से पढ़ के समझते हैं कि ठीक है, उनकी दुनिया के ज़ाहिर और भी मामला तो होते हैं, कारोबार करना, काम करना, बच्चों को पालना, तो ठीक है, चलता है ऐसे, कोई मसला नहीं। जी ठीक हो गया इजाज़त दे फिर जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, मेहरबानी। ठीक है, अभी व्हाट्सअप इजाज़त है यूसुफ भाई, ओके। फिर मैं ना ब्राड बंद करूं, क्योंकि फिर कल जो सा व्हाट्सअप फिर मैं ब्राड भी उसी टाइम ऑन करूँगा ना। आज तो ब्राड हो गई है, कोई 12.5 घंटे हो गई है ब्राड आज। ठीक है जी, ओके, शुक्रिया। क्योंकि मैं दूसरी आईडी ऑन करनी है, ये मैंने बंद करनी है। ओके जनाब, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़ आपको। अल्लाह हाफिज़।